group efficiency Ng is equal to 1 minus theta by 90, 1 minus theta by 90 into m into n minus 1 plus n into m minus 1 divided by mn, divided by mn. What is theta here, what is m here, that is n here. ये आपको मालूम होना बस है. बाकी का सब everything, all other things remains same. All thing remains same. What this says that group efficiency Ng is given by, group efficiency Ng is given by 1 minus theta by 90 m into n minus 1 plus n into m minus 1 divided by m into n. Now the question arises, what is theta, what is m, and what is n? Theta is given by tan inverse d by s. Theta is equal to tan inverse d by s. So now again the question arises, what is d, what is s? See now the piles are arranged here. D means diameter of pile. S means spacing of the pile from center to center, not from edge to edge. देखिए ये दो piles है. Don't consider from end to end. Take center of this one, take center of this one, whatever is there, no, that is the spacing S. That is the spacing S. So spacing S मालूम है आपको, diameter D मालूम है. Spacing S मालूम है और diameter D मालूम है. Okay, spacing S is there, diameter D is there. So D is diameter of the pile. S means spacing, that is center of the pile to another center of the pile distance. इसके center का और इसके center का बीच में distance निकालो, that is S. Once you know D, diameter of the pile, once you know the spacing between two piles, then theta is equal to tan inverse D by S. Tan inverse D by S. Then what is m and what is n is, m is equal to number of rows. 1, 2, 3 ऐसा number of rows जितने भी आते हैं ना, वो देखो यहाँ पर number of piles in the group, m into n, where m is the number of rows in the group and n is the number of columns in the group. S is the spacing of the group. When I share this one, you will come to know. So इसमें अब कितने piles है? Total 9 है. M कितने? 1, 2, 3. These are number of rows. Columns कितने हैं? 1, 2, 3. Vertical lines are columns. So 3 rows, 3 columns are there. So M is known, N is known, and then theta is tan inverse D by S. Tan inverse D by S. D is diameter, S is spacing. D is diameter, S is spacing. S is spacing. Okay? So this is the converse labor formula. Converse labor formula. One problem, let me see whether any problem is there on this one or not. Yeah, it is here. A group of piles of diameter 350 mm. Diameter of the pile is 350 mm, means D is equal to 350 mm, that is 0.35. 15 meter long, length is 15 meter, are arranged in 4 rows at a spacing of 1 meter center to center. 4 rows means M is equal to 4, S is equal to 1 meter. The number of piles is 20. The number of piles is 20. Rows is how many rows? 4 rows. तो n is equal to columns कितने हो जाते हैं automatically? 4 into 5 है ना? Number of rows into number of columns is equal to total number of piles. Total number of piles is 20. Rows are 4. M is equal to 4. Mn is equal to 20. So n is equal to 20 by 4 is 5. And capacity of each pile is 400 kilonewton. Determine the group capacity. He's not asking efficiency. Group capacity निकालना है. ग्रुप कैपेसिटी कैसा निकालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले आप ग्रुप एफिशिएंसी निकालना तो सीखो. ग्रुप कैपेसिटी एक मैं बाद में भी आपको समझा सकता हूं.
It's not that much different. M is 4, N is 5. D is 35 mm, means can be written as, it's not 35 mm, actually it should be 350 mm. It is 350 mm, therefore I will write it as 0.35 meter. It is 0.35 meter. Spacing from center to center is S is equal to 1 meter. S is equal to 1 meter. Number of piles is 20. That is NP is equal to 20 and Q U, that is the number of piles, capacity of each pile. Of course, capacity of each pile QU is equal to 400. QU is equal to 400. Then what is the group capacity? What is the group capacity? Group capacity हम बाद में निकालेंगे. पहले देखो NG निकालेंगे. NG is equal to 1 minus theta by 90 m into n minus 1 plus n into m minus 1 divided by mn. Divided by mn. The theta is equal to tan inverse d by s. That is tan inverse 0.3 by 1. D by s. Theta is equal to tan inverse d by s. Tan inverse 0.35 by 1. 0.35 by 1. So 19.29 degrees. Theta is 19.29 degrees. In this way, calculate theta. You calculate theta. Once you calculate theta, 1 minus 19.29 by 90 into m 4, n minus 1, 5 minus 1 plus n is 5 into m minus 1, 4 minus 1 into mn, that is 4 into 5, and this is equal to 0.667. This is 0.667 is Ng is equal to Ng. And if you remember, यहाँ तक तो मालूम है क्या, देखो group efficiency and this formula is called converse Laber equation. सभी डाटा देके आपको एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता. ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ डाउट है तो पूछो. This is converse Laber equation. Very simple. It is m is number of rows, n is number of columns, np is total number of piles. So theta is tan inverse d by s, where d is the diameter of the pile, s is the spacing between two piles. So all the things are known. If you substitute, you will get group efficiency. Ng is equal to 0.667. Ng is equal to 0.667. 0.667. Got it? Once you know the Ng is equal to 0.667, group capacity is equal to, formula क्या है? Ng is equal to, मैं आपको formula बताया था ना, Ng is equal to QUG divided by लिखा हुआ नहीं है सर, पहले कल सुबह बताया था सर ना. Ng is equal to QUG divided by N into QU. N into QU. Ng is equal to QUG divided by N into QU. But यहाँ पर हमको QUG मालूम करना है. QUG is equal to N into QU into Ng. So total number of piles is 20. Total number of piles is 20 into QU is capacity of each pile, single pile, that is 400 kilonewton, into efficiency is 0.667. Just we got Ng is equal to 0.667, and this is equal to whatever the answer you got it. So in this way, group's capacity has been calculated. This is the common question to be asked in MCQs. Please go through this. This is very, very, very important. This is very important. Clear the things? Shall I move further? So now I will discuss about this. I was discussing earlier also, I told you. So when piles in group are there, so as I told in the morning also, once again I will repeat it, ultimate bearing capacity of pile in group is not always equal to sum of the all individual
piles present in the group. मतलब ग्रुप का कैपेसिटी n इंटू नंबर ऑफ हर एक का कैपेसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर कभी भी नहीं होता. हो सकता है कभी कभी हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, और 99% 90% तो कम ही रहता है. कुछ ग्रेनुलर सॉइल में जब स्पेसिंग हम बहुत ज्यादा रखते तब शायद 1 के ऊपर हो जाए, लेकिन हमेशा 1 से कम ही रहता है. इसीलिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ऑफ ग्रुप इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पाइल्स प्रेजेंट इन द ग्रुप. Present in the group. Now, group efficiency (Ng). Group efficiency is given by QUG. Means efficiency is equal to capacity of bearing capacity of group divided by n into bearing capacity of individual pile. N is equal to number of piles. So group efficiency is equal to piles का combinedly group में कितना bearing capacity आता, that divided by number of piles, that is n into single pile का QU bearing capacity, single pile का QU, where QUG is equal to ultimate load bearing capacity of pile group, where QUG is equal to ultimate load bearing capacity of pile group, and next is QU is equal to ultimate load bearing capacity of single pile, and n is equal to number of piles. n is equal to number of piles. यही फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ पर अभी ग्रुप का कैपेसिटी निकाला था, वहां सिंगल कैपेसिटी का दिया था. सो QUG is equal to n into QU into NG. NG हमको निकाले थे हम कॉर्नर-स्लैबर फॉर्मूले से. n 20 फाइल्स थे, QU 400 था, 20 into 400 into 0.667 करे थे, तो ग्रुप का बेयरिंग कैपेसिटी निकला था. ग्रुप का बेयरिंग कैपेसिटी निकल गया था. ओके, सो फर्दर, so this is the formula. So now this efficiency, that is efficiency of group, is always less than 1 for small spacing between piles. मैं आपको सुबह ही बता चुका था, जब स्पेसिंग ऑफ पाइल्स कम होते जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रेस उसका स्ट्रेस क्रॉस ओवर करते एक दूसरे को, वहां पर हमेशा एफिशिएंसी इज लेस देन 1. वहां पर एफिशिएंसी जो है इट इज लेस देन 1, and this is greater than 1 for driven piles in loose to medium soil. Ng is greater than 1 कहां पर है? पाइल्स ड्रिवन रहना और लूज टू मीडियम सॉइल रहना और स्पेसिंग ज्यादा रहना चाहिए. And Ng equal to 1 for larger spacing of piles. So ये 1 लाने का हम कोशिश करते रहना. So this is the, कहां पर Ng कम रहता कहां ज्यादा रहता ये आपको देखना पड़ता. मैं आपको मॉर्निंग में इससे पहले तो बेयरिंग कैपेसिटी के नियर अबाउट 70-75 एमसीक्यूज दिया था, और दूसरा पाइल का आज भेज दिया सुबह 31 है, और पाइल के आजकल में एक और 20-25 भेज दूंगा. ऐसे ही स्लोली भेजते रहूंगा. And luckily, if I get the question paper, means definitely the questions will be from the bank which I am providing you. Okay, so please maintain that one. हाँ, सभी लिख लो, आपको जो भी मैं भेज रहा हूँ उसको मेंटेन करो, लिख लो, सभी चैप्टर्स पूरे देख लो, हर क्वेश्चन ट्राई करो अच्छी तरह. Okay, so now this is all about piles in groups. That is Ng is equal to QUG divided by n into QU, L into Q. Now, coming to the point, when piles are in group in clay, how to find its ultimate load capacity? How to find ultimate load capacity of piles when they are in group? When they are in group, पाइल सिंगल क्ले का निकाल लेते हैं. यहाँ पर ग्रुप में क्ले है तो क्या करना? तो जब पाइल्स ग्रुप में रहते दो टाइप से फेल हो सकते हैं. बाय ब्लॉक फेल्यूर, मतलब टोटल फेल्यूर. बाय ब्लॉक फेल्यूर when the spacing is less than 2 to 3 times of the diameter of the pile. When the spacing is less than 2 to 3 times of the diameter of the pile, they will fail by block failure or by individual pile failure, and this happens when piles are spaced wider. So these are the two. When piles are spaced very wide, when the piles are spaced very wide, so definitely they are going to fail by individual.
and when they are nearer to each other then they are going to fail by block failure. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम डिजाइन करने दिया तो आपको ये चेक करना है कि अगर से वो ब्लॉक फेल्यूर हो रहा तो कितना आता कैपेसिटी, और सिंगल इंडिविजुअल फाइल फेल हो रहा तो कितना आता। हाँ, ये दोनों हमको हर प्रॉब्लम में यही करना है, डिजाइन मतलब यही करना है। अगर से ग्रुप में है तो कैसा फेल्यूर होता, और फेल्यूर होके वो कितना मतलब ये होता, फेल्यूर होके कितना फेल्यूर होता ग्रुप में रह जाए, और अगर से विड्थ ज्यादा है तो इंडिविजुअली फेल होता तो इंडिविजुअली कैसा होता। सो क्ले में जो है द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप इन ब्लॉक फेल्यूर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सिंगल का तो हम लोग मालूम है हमको, इंडिविजुअल फेल क्या होता फॉर्मूला अल्फा इंटू सी यू इंटू ए एस प्लस वो आपको दिया था ना मैं फॉर्मूला सी एन सी इंटू ए बी, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑल सेम फॉर्मूला है। सी यू बी एन सी ए बी, यहाँ ग्रुप रहने दो सिंगल रहने दो, एंड बेरिंग सेम रहता और दोनों का सेम फॉर्मूला है, एंड बेरिंग दोनों का सेम रहता और दोनों का सेम फॉर्मूला है, दैट इज सी यू बी इंटू एन सी इंटू ए बी, सी यू बी इंटू एन सी इंटू ए बी प्लस PB इंटू L इंटू CU, वहां अल्फा इंटू CU इंटू था देखो AS, अल्फा इंटू C इंटू AS था वहां इंडिविजुअल में पाइल में, क्ले में। यहाँ पर क्या है PB इंटू L इंटू CU। ये फर्स्ट पार्ट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दिक्कत। CUB मींस कोहेजन एट द बॉटम दैट इज अंडर shear strength, और NC is equal to the fixed value of bearing capacity factor, and this fixed value is 9. This fixed value is 9, and AB is equal to area of the block at the bottom, and for cylindrical one this is pi by 4 d square. PB means perimeter of block, पेरीमीटर मतलब पूरा ब्लॉक का पेरीमीटर कितना है कैसा निकालना मैं बताता हूं आपको, सिर्फ एक पाइल का नहीं पूरे ब्लॉक का पेरीमीटर कितना है आपको निकालना है। L is equal to embedded length, L क्या है एम्बेडेड लेंथ है, अंदर कितना जाता एम्बेड क्यों होता, और फाइनली CU is equal to cohesion at the side, finally CU is equal to cohesion at the side. So this is the very important formula when the pile fails in group. Please take down this one. देखिए pile in clay, single pile in clay क्या फॉर्मूला है, clay piles in group in clay क्या फॉर्मूला है, उसके बाद in sand क्या फॉर्मूला है, piles when they are in sand, उसके बाद with water table आया तो कैसा करना, हाँ विदाउट वाटर टेबल आया तो कैसा करना, उसके बाद क्रिटिकल लेंथ आया तो कैसा करना, क्रिटिकल लेंथ नहीं रहा तो कैसा करना, उसके बाद लेयर्स रहा तो कैसा करना, ये सभी फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। नाउ टेक डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द ग्रुप कैपेसिटी टू बी फाउंड by for the pile when it fail in block in clay. CUB and CAB, NC हमेशा 9 है, AB is pi by 4 d square, CUB means cohesion at the bottom, CUB means cohesion at the bottom, PB means perimeter, हाँ that only I am telling Gaurav, CUB and CUB में फर्क क्या है देखो बेटा, अब आप सॉइल कैसा है आपका, साइड में सॉइल अलग है और बॉटम में अलग है, समझ रहे आप, साइड में अलग है क्योंकि जैसा जैसा आप डीप जाते हैं सॉइल के लेयर चेंज होते जाते हैं हर 5 फीट के बाद, तो सॉइल अलग अलग आते जाता। अगर से साइड में सॉइल अलग है और बॉटम में सॉइल अलग है तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता, मतलब बॉटम में सॉइल जो है उसका कोहेजन CUB, कोहेजन एट द बेस, और CU इज कोहेजन एट द साइड, ये दोनों अलग अलग है तो, लेकिन 90% केसेस में दोनों सॉइल सेम रहता, इसलिए CUB is equal to CU, CUB is equal to CU, got it? So this is CUB and CAB plus PB into L into CU, or this is the formula for, this is the formula for failure of piles in group in clay,
failure of piles in group in clay. So this is the formula. ओके, गॉट इट बेटा? आया सबको समझ में? सो दिस इज दी पाइल व्हेन इन ग्रुप। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रुप में रहे जब पाइल कैसा फेल होता और सिंगल रहे जब कैसा फेल होता, ये आपको निकालना है। और आपको हर प्रॉब्लम में दोनों मेथड से करना है। व्हाट इज एम्बेडेड लेंथ? एम्बेडेड लेंथ मतलब कितना, एम्बेडेड का मतलब क्या है? एम्बेडेड मतलब क्या बोलूं मैं आपको अब, हाउ मच डेप्थ इट हैज गॉन, किती ते आता असं उघडं असलेलं नाही वर पाइल, किती मध्ये गेलंय, क्या बोलते हैं उसको, कितना घुस गया पाइल अंदर जमीन में, कितना खुदा हुआ, कितना गड़ गया उसके अंदर, दैट इज द एम्बेडेड लेंथ। एल मींस लेंथ ऑफ द पाइल। एंड मोर और लेस सी, सब बिलो ग्राउंड लेवल जाता मतलब पूरा एम्बेडेड ही रहता, खुला पाइल ऊपर थोड़े ही रहता। अगर से ऊपर है ग्राउंड के ऊपर तो उसको हमको छोड़ना है। समझ रहे आप इस बात को? तो एम्बेडेड मतलब पूरा आपको घुसना ही है उसके अंदर, बट इट जितना है उतना अंदर ही लेना है। पीबी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक के बारे में बताता हूं आपको। आज प्रॉब्लम नहीं लेता मैं, आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं, उसके बाद फ्रेश माइंड से अगले पीरियड में स्टार्ट करता हूं। बेसिक से बताते जाता हूं आपको। पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक मतलब क्या है? अब यहां पर है, यहां पर है, देखिए पाइल्स। पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक मतलब, पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक मतलब ये ऐसा, ये फिर ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये चारों, ये एक एक सिंगल पाइल्स है। और ये सिंगल पाइल्स क्या है मालूम है? ये अरेंज करे हुए, ये 16 पाइल्स जो है अरेंज किए हुए हैं, सिंगल पाइल्स। तो अब इसका विड्थ एंड टू एंड कितना होता? एक स्पेसिंग, दो स्पेसिंग, थ्री स्पेसिंग, 3s, इधर आधा डायमीटर, इधर आधा डायमीटर। तो यहां से लेके यहां तक 3s प्लस डी, 3s प्लस डी, इधर भी सेम है 3s प्लस डी, इधर भी सेम है 3s प्लस डी, इधर भी सेम है 3s प्लस डी। तो टोटल पीबी क्या होता है यहां पर? 4 इंटू 3s प्लस डी, 4 इंटू 3s प्लस डी। पीबी क्या होता? 4 इंटू 3। एल मतलब बेटा लेंथ ऑफ द पाइल, नया कुछ है, एम्बेडेड लेंथ इन द सेंस, वहां ऐसा बोल रहा हूं ना जितना घुस गया। तो पाइल जब आप फाउंडेशन में दे रहे तो डेफिनेटली एम्बेडेड ही रहेगा, वो ग्राउंड के नीचे ही रहेगा। अगर से ग्राउंड के ऊपर कुछ है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब। और जैसा कि आप पूछे कि सीयू और सीयूबी में क्या फर्क है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में आपको घुमाने फिराने के लिए ऊपर अलग सॉइल देता सॉइल में, और नीचे बॉटम में अलग सॉइल देता। बॉटम में जो सॉइल देता उसका कोहेजन आपको यहां लेना है, और जो बॉटम साइड्स में आपको लेना है वो यहां लेना है, वो यहां पर लेना है। और लेंथ मालूम हुआ, पीबी भी बता दिया मैं आपको। ए भी तो मालूम है आपको, सिलेंड्रिकल रहा तो नीचे हमेशा सर्कुलर रहता, और सर्कुलर रहने से उसका डायमीटर पाई बाय एरिया कैसा निकालते हैं? पाई बाय 4 डी स्क्वायर निकालते हैं। एनसी इज इक्वल टू 9, एनसी इज इक्वल टू 9 है तो फिक्स है। ओके, अच्छा अब आप पूछेंगे सर यहाँ सी एन सी कैसा आया? तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी का? सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू, है ना, गामा डी एन क्यू प्लस 0.5, ऐसा ऐसा कुछ करते जाते हैं। तो यहां पर क्ले में हम थर्ड टर्म तो बहुत छोटा रहता बल्कि छोड़ते, गामा डी हम सैंड में लेते हैं, गामा डी इंटू एन क्यू लेते, और क्ले में क्या करते? कोहेजन लेते, इसलिए पहला टर्म लेते, दैट इज सी इंटू एन सी, that we take C into NC, C into NC into AB plus PB into L into CU, PB into L into CU. I hope this is I mean creating interest in you. तो इसके प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। मैं आज तो जरा मैं भी थक गया हूँ, सुबह से कंटिन्यू आई एम हैविंग क्लासेस। तो आप लोग भी जरा गेस्ट लेक्चर भी हुआ ना, तो जो भी इसके प्रॉब्लम्स है मैं अगले क्लास में पूरे डिटेल में लूंगा।
और ये करके मैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लूंगा, इसके गेट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो पाइल अंडर रिम्ड पाइल बोलूंगा। तो अभी एक 3-4 क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन एक बार पाइल डिटेल में हो गया तो बाकी के सब आप सिलेबस कंप्लीशन का सोचो ही मत। अभी एग्जाम डेट आने दो, एग्जाम डेट आते ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर ले सकता हूँ। सिलेबस कंप्लीशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात क्यों एचओडी सर से, मुझे कितना है उतना बैरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन दो आपको अच्छी तरह, और आप भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो इसको। ऐसा नहीं कि सॉइल एक्सप्लोरेशन पे भी बहुत से क्वेश्चन पूछता। ओके, तो कॉन्सेप्ट आप फिर बोल रहा हूं मैं आपको, हो सकता है मैं आपको अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट वाइज जाओ। भाई डिजाइन पाइल में करते, सैंड में करते समय क्या कॉन्सेप्ट ले रहा, क्ले में करते समय क्या कॉन्सेप्ट ले रहा, कौन कौन से वैल्यूज ले रहा, कौन सा नेग्लेक्ट कर रहा, फ्रिक्शन क्या है, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस क्या है। सो ये सभी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। Okay, I will stop it here only because I am little bit tired today. I am very sorry for that. So अभी थोड़ा चाहे तो अभी 15-20 मिनट ले सकता था मैं, आज रहने दो, क्योंकि नया टॉपिक प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम मैं फिर रिपीट करूंगा, ये फॉर्मूला और फेल्ड्स रूल एक बार आप अच्छी तरह देखो, फिर उसमें कुछ पहले के प्रॉब्लम्स को एवरेज क्यों नहीं लिया वो मैं आपको करके पेपर पे और एक बार बताता हूँ, उसका एवरेज भी बता देता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और फेल्ड्स के और थोड़े क्वेश्चन पर के प्रॉब्लम भी मैं जहां रोज ऑन द कॉलम्स इक्वल नहीं रहते वैसे भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी व्हाट आई वाज आस्किंग दैट, कुछ पूछा था मैं। अब अटेंडेंस लूंगा मैं, अटेंडेंस फिर से रिपीट नहीं करता, मुझे चार्ट बॉक्स में सिर्फ वो लोग अपना नंबर दे दो जो सुबह नहीं थे, जो सुबह नहीं थे सिर्फ अब आए हैं उनको मैं अटेंडेंस डालूंगा। वैसे लोग चार्ट बॉक्स में अपना, ओह इट इज गॉन, है मैं समझा नेट कनेक्शन गया, कनेक्शन है तो आप चार्ट बॉक्स में नाम दो A16, यस आकांक्षा चौहान A16, A49 और B53, यस B53। और ऐसे कोई जो सुबह है तो मत बोलो, उनका मैं अलग से लिख के फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। जो सुबह नहीं थे अब आए सिर्फ, ऐसे कोई लड़के हैं तो अटेंडेंस दे दो। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं अभी जरा जोर लगा के पढ़ो, और जीटी गेट के लिए बहुत बहुत दिव्या देशमुख यू वेर प्रेजेंट बेटा, इन द मॉर्निंग यू वेर प्रेजेंट, और इसको जरा जोर लगा के पढ़ाई करो। गेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस जीटी को दे दो आप। जीटी दिखने में बहुत लंबा डिफिकल्ट दिखता है, ऐसा है नहीं। आप सॉन्ग को जितना टाइम लगता है GT1 और GT2 को उतना टाइम लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको 15 मार्क्स है, सॉन्ग को 3-4 मार्क्स भी नहीं आती। स्टील स्ट्रक्चर्स पूरा 3-4 मार्क्स का नहीं आता, RCC 4 मार्क्स का नहीं आता। B12 है बेटा, मॉर्निंग यू वेर देयर, जो मॉर्निंग नहीं थे वैसे लोग डालो सिर्फ। A27, यस यू वेर आल्सो प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर भी अभी कुछ डाउट्स है या B42 ऋत्विक, यस आई विल गिव यू नाउ 42। तो अभी भी कुछ डाउट्स है आपको, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज यू आर ऑलवेज वेलकम, फ्री टू डिस्कस विथ मी। आपके देखिए ऑनलाइन रहने से कभी कभी हम लोग सही एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको ऑनलाइन को लाइव रखना बहुत मुश्किल है। आपको एटीट्यूड रखना, बार बार चिल्लाना पड़ता, बहुत बार बोलना पड़ता, बोले सो चीज बार बार बोलना पड़ता। क्लासरूम टीचिंग बहुत ईजी है, वी आर फेसिंग, और क्लासरूम पढ़ना भी बहुत ईजी है, मजा आता है क्लास में बैठ के पढ़ने। ये बहुत बोरिंग है। मैं सुबह 2 घंटे स्टील के क्लास में पढ़े तो मेरे को, और रामपंत के क्लास में बैठे तो इतना इंटरेस्ट आता था पहले, अब बिल्कुल बोर है, अजीब टाइप होता है एक टाइप का। ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग जरा मुश्किल ही है, बट वी डोंट हैव ऑप्शन, नो वी डोंट हैव अदर ऑप्शन, देयरफॉर वी हैव टू, ओनली थिंग इज B6, yes it is given beta, morning you were present। B27, yes given in the morning itself। और कोई है तो बोलो, और इसके बाद हुआ तो आप लोग जा सकते। सो आई एम सॉरी आज एक 10-20 मिनट पहले छोड़ दिया मैं, बट आई एम लिटिल टायर्ड, आई डोंट वांट टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। B8, यस गिवन क्षीरसागर। सो नेक्स्ट वीक में मैं और पाइल आपको पूरा एक बार, और पाइल को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, पाइल एक बार और परफेक्ट अच्छी तरह हो जाने दो, उसके बाद बाकी के शीट पाइल वॉल भी मैं डिटेल में जाऊंगा, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स थोड़ा। बाकी का जो थ्योरी है मैं नोट्स दे दूंगा या हम पढ़ लेंगे आपस में, वी कैन डिस्कस, उतना मतलब आप खुद भी पढ़ ले सकते हो वो चीजें। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं टीचर के पढ़ाने के बाद बहुत इजी होता है, टीचर के पढ़ाने के बाद बहुत इजी होता है।
Yeah, Gaurav, I can understand it. From my side, I will tell you what is my problem is I am not that much perfect in computer. So जरा problem हो रहा, but मैं बहुत जल्दी तुम्हारा problem solve करता हूँ. I am really sorry from all these teachers side. हाँ, मैं आपको कल परसों 1-2-3 दिन में मैं आपको सबको करने लगाऊंगा, मैं अपना खुद भी करूंगा. Yes, for all teachers I will do it. आपको notes भी provide करूंगा, MCQs भी provide करने लगाऊंगा as CC of the class or notes. So don't worry about your problems. You can discuss with me. मैं हर एक से डिस्कस करके मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. You need not worry. B22 Manoj Bhumkar. I will do it. Okay, okay, it is going to stop automatically now. Okay. I will ask sir. और नोट्स तो मिल रहे हैं ना सबके? PPTs, notes, MCQs. नोट्स, MCQs, PPTs का प्रॉब्लम है क्या? वीडियोस में अपलोड करने लगाऊंगा. कर दो जरा जल्दी. और मैं कल परसों छुट्टी है, मुझे कोई एक एमटेक का लड़का भी मिला ना तो आई विल टेक हिज हेल्प एंड जल्दी मैं डाउनलोड अपलोड कर दूंगा. लेकिन जरा मेरा प्रॉब्लम हो रहा. यस, भाग्यश्री भोम 812 गिवन बेटा, गिवन. ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू स्टॉप. B22 Manoj given. When you were entering that at that time only I noted. Okay, now it is going to stop. So let me stop it here, and the next class wherever it is, if possible I will take Sagar madam's classes next week.